قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں اور اسی کے لیے سزاوار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اس کے احکام شرعیہ کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، چاہے وہ زندگی دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو یا تجارتی میدان میں ہو یا اخلاقی معاملاتی میدان میں ہو، ہر معاملے میں، ہر میدان میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رتبہ، اس کا مقام بلند ہو، اعلیٰ ہو، اسے ایک عزت ملے، اسے ایک ریسپیکٹ ملے، ایک کامیاب زندگی ملے۔ کامیاب زندگی گزارنے کی کوششیں کرنا، محنتیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کے تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ بندہ ہر حال میں یہ فکر کرے، یہ سوچے، یہ خیال کرے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ہمارے ہر ایک عمل کو اللہ قبول کرے، ہمارے ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری زندگی کا ہر ایک عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کی خواہش کرنا، محنتیں کرنا، تمنائیں کرنا، دعائیں کرنا یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی ہم کیسے گزارے، ہم ہماری زندگی کو کیسے کامیاب زندگی بنائے، ازدواجی زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنائے، تجارتی معاملات میں ہماری زندگی کو ہم کیسے کامیاب بنائے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کے لیے ہم کیا کریں دنیا کے اندر۔ اس لیے دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں ہم کو کچھ اصول بتائے ہیں۔ اس اصول کے مطابق، ان قوانین و ضوابط کے مطابق اگر میں اور آپ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آئیے آج کے جمعہ کے خطبے میں میں آپ کو کامیاب زندگی کے چند رہنما اصول قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن نے چند اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں یہ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم کامیاب انسان ہو، اگر تمہارے پاس عہدہ ہے کامیاب انسان ہو، بڑا حسب اور نسب ہے، اونچے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو تم یہ غلط گمانی میں نہ رہو، یہ خواب و خیال میں نہ رہو کہ تم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ، سب سے زیادہ لاڑیلا، سب سے زیادہ کامیاب بندہ وہ ہوگا جس کے نزدیک
जितना ज़्यादा तक़वा होगा। इसी के ताल्लुक़ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह ऐनमा कुन्ता, तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाज़ार में रहो, चाहे सफ़र में रहो, चाहे हज़र में रहो, चाहे बीवी बच्चों के साथ में रहो, चाहे दोस्त और अहबाब के साथ में रहो, आप जहाँ कहीं भी रहो, जिस हाल में भी आप ज़िंदगी गुजारो, ये ज़िंदगी में सबसे पहले याद रखो कि अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह ऐनमा कुन्ता, एक और जगह फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके आप अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करो कि तुम्हारी कदम कदम पर अल्लाह का डर हो। तुम्हारे खाने में, तुम्हारे पीने में, तुम्हारी कमाई में, तुम्हारे तिजारत में, तुम्हारे मामलात में, तुम्हारे बात करने में, तुम्हारे पहनने में, तुम्हारे ओढ़ने में, तुम्हारे ज़िंदगी के लम्हे लम्हे में कदम कदम पर तुम अल्लाह ताला से डरो कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी हरकत करने से पहले ये सोचो कि शरीयत इस काम के बारे में क्या हुक्म देती है। चाहे वो तिजारती मामला हो, या शादी ब्याह का मामला हो, या घरेलू मामला हो, या इज़्दिवाजी ज़िंदगी का मामला हो, या बच्चों की तरबियत का मामला हो, या माँ बाप की खिदमत का मामला हो, या भाई बहनों के हुकूक का मामला हो, या पड़ोसियों का मामला हो, या रिश्तेदारों का मामला हो, कोई भी मामला आपकी ज़िंदगी का हो, उस मामले में आप ये सोचे कि अल्लाह हमारे मामले से, हमारे काम से राज़ी हो जाए। इसीलिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे और आपको सबसे पहले जिस बात की ज़रूरत है वो है अल्लाह का डर। अक्सर जुमा के खुतबे में या निकाह के खुतबे में, खुतबे निकाह में कुरान करीम के जो आयात पढ़े जाते हैं, उन आयात में 3 आयतें मशहूर पढ़े जाते हैं। वो तीनों आयतों के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को इस बात का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म दिया कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, हर मामले में अल्लाह से डरो। बाज़ होते हैं मस्जिद में आए, नमाज के वक्त में रहे तो अल्लाह से डरते हैं, जैसा ही मस्जिद से निकल जाए, बाज़ार में चले जाए तो हमारा दीन ख़त्म हो जाता है, दुनिया हमारे दिलों में आ जाती है, अल्लाह का डर ख़त्म हो जाता है, धोखेबाजियाँ हमारे दिलों में आ जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे और हर मामले में अल्लाह के डर को, तक़वे को मुक़द्दम रखे। लोग क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र ना करे, रिश्तेदार क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र ना करे, दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र ना करे, बल्कि हमारे ज़िंदगी के हर मामले में, हर काम के अंदर ये सोचे, ये ख्याल करे, ये फ़िक्र करे कि इस काम से अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़ी होगा, अल्लाह के नबी ने इस काम का हुक्म दिया है या नहीं दिया है। अगर अल्लाह इसे राज़ी होता है तो हर वो काम करने की कोशिश करो, चाहे दुनिया वाले नाराज़ ही क्यों ना हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला उसूल अल्लाह का डर होना चाहिए। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का हर मामला 2 चीज़ों से भरा हुआ। हमारी ज़िंदगी के कदम कदम पर ये 2 काम मेरे और आपके ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो। वो 2 काम हैं, एक सब्र है और एक शुक्र है। कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये 2 कामों को लाजिम पकड़ लो, एक सब्र है और एक शुक्र है। क्योंकि इंसान को ज़िंदगियों में कामयाबियाँ अता करते हैं, तरक्कियाँ अता करते हैं ये 2 काम। सहाबाए किराम की ज़िंदगी हो, अंबिया की ज़िंदगी हो, वो ज़िंदगियों का मुताला जब हम करें, कुरान को पढ़े, समझे, उसमें गौर व फिक्र करे, तो कामयाब सहाबा की ज़िंदगी में, कामयाब अंबिया की ज़िंदगी में से जो चीज़ें मुझे और आपको मिलते हैं वो चीज़ें हैं सब्र और शुक्र।
प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब ज़िंदगी होती है, मोमिन की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब ज़िंदगी होती है। वो इस एतबार से कि अगर उसे कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई बीमारी पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, कोई बला उसे पहुंचती है, किसी भी तरह का नुकसान अगर उसे पहुंचता है तो मोमिन बंदा जो होता है वो शुक्र बजा लाता है, सब्र करता है। जब सब्र करेगा तो सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इत्मीनान क़ल्ब नसीब फरमाता है। मेरे भाइयों, सब्र एक ऐसा अमल है, एक ऐसी नेकी है जिसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब किताब के अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो बंदे दुनिया में सब्र करते हैं, हर मामले में सब्र करते हैं, अल्लाह ने बीमारियां दिया, सब्र किया, अल्लाह ने तिजारत में नुकसान दिया, सब्र किया, लोग उसके साथ में तरह तरह की तकलीफ़ें देते रहे, लेकिन उसने सब्र किया। ज़िंदगी के हर मामले में जब वो सब्र को इख्तियार करेगा तो अल्लाह ये सब्र का बदला क़यामत के दिन अता करेगा। हर नेकी का बदला एक हिसाब से दिया जाएगा, नमाज का बदला एक हिसाब से दिया जाएगा, सदक़े का बदला एक हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ने कहा इसका बदला बग़ैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये कौम को लाया जाएगा, ये कौम को लाया जाएगा, उनको मोतियों के मिंबरों पर बिठाएगा, मोतियों के मिंबरों पर अल्लाह उनको बैठने का हुक्म देगा। वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे तो अल्लाह का हुक्म होगा, मैं इनसे आज राज़ी हूँ, और इनको तरह तरह के इनामात से नवाजा जाएगा। इनको ये इतनी इज़्ज़त की जाएगी, इतना इकराम किया जाएगा, इतना ज़्यादा एजाज़ उनको दिया जाएगा। ये चीज़ों को देख करके लोग सवाल करेंगे, लोग सवाल करेंगे ये कौन लोग हैं जिनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है, इतना ज़्यादा इनाम दिया जा रहा है, अल्लाह इनसे इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, ये कौन लोग हैं? तो उनको बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया करते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया करते थे, इसके बदले में इन लोगों की अजर दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ रहने वाले तमाम लोग ये ख्वाहिश करेंगे, ये तमन्ना करेंगे अल्लाह से, ये आरज़ू करेंगे, काश दुनिया में हमको भी तकलीफ़ें दी जाती, मुसीबतें आते, परेशानियाँ आते। बाज़ रिवायात के अंदर ये बताया गया कि दुनिया के अंदर उनको भी कैंचियों से काटा जाता, अगर वो सब्र करते तो हमको भी आज ये बदला यहाँ पर मिलता था। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सब्र लेकर के आए, सब्र लेकर के आए, सब्र का बदला अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब उसके बाद सब्र के साथ शुक्र बजा लाए। हमारी ज़िंदगी में हमको जो भी चीज़ें मिलते हैं, जो भी इनामात अल्लाह के मिले हैं, वो इनामात पर शुक्र बजा लाए। शुक्र बजा लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है जो बंदा शुक्र बजा लाएगा अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफ़ा करेगा। जो भी नेमत हमको मिलती है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। एक वक्त का खाना मिला है, दो वक्त का मिला है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाए। किसी भी मामले में शुक्रगुजारी को बजा लाए, शिकवा और शिकायतों को हरगिज़ अपनी ज़बान पर ना लेकर के आए। शुक्रगुजारी करने के लिए एक बेहतरीन उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि अगर तुम शुक्रगुजार ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो दुनियावी मामलात में आप अपने से नीचे वाले को देखो,
اور اخروی معاملات میں، عبادات کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی میں تم کو خوشحالی آئے گی، اللہ کا شکر بجا لانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آج ہم ہماری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کامیاب زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلا اصول اللہ کے لیے تقوی کو اختیار کرے، دوسرا ہماری زندگیوں میں صبر کو تھامے رہے، صبر کو لے کر کے آئے، تیسرا معاملہ شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کی مثالوں کو بیان کرتے ہوئے سلیمان کی مثال دے کر کے کہا، سلیمان بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ سلیمان شکر گزار زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا، ایسی دولت دیا، ایسی بادشاہت دیا، ایسے فضائل دیا، ایسے انعامات دیا اللہ تبارک و تعالی کہ کسی اور بندے کو اللہ نے اتنے انعامات نہیں دیا۔ یہ سب کے سب بھی بندہ شکر گزار زندگی بسر کرنے کی وجہ سے۔ پہلا معاملہ تقوی ہے، دوسرا معاملہ صبر اور شکر گزاری ہے، تیسرا کام جو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بسر کرنا ہے، گزارنا ہے، اختیار کرنا ہے، وہ ہے ہمیشہ اعمال صالحہ کرے، ہمیشہ نیکیاں کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے توبہ کرے، ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دے، ہر برائی کے کام کو چھوڑ دے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور ہر نیکی کے کام کو اپنائے، ہر نیکی کے کام کو اختیار کرے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہر نیکی کے کام کو اختیار کرے، ہر برائی کے کام کو ترک کر دے، کیونکہ گھر کے سارے افراد تقوی والے بن جائے، متقی بن جائے، نمازی بن جائے، نیک بن جائے تو ایسے گھر کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، اللہ کے کرامات نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فضائل نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ اعراف کے اندر کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے جس گھر والے، جس محلے والے، جس بستی والے متقی بن جائے، تقوی والے بن جائے، اعمال صالحہ کرنے والے بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے تو ایسے گھروں پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر آتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے گھر میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے ماحول کو سدھارو، گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ، گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ، بیوی کو نیک بناؤ، بیوی کو نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو توحید سکھاؤ، بیوی کو توحید سکھاؤ، ماں باپ کو توحید سکھاؤ، ہر رشتہ دار کو توحید بتاؤ، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دو، شرک سے ان کو روکو، برے کاموں سے ان کو روکو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جس گھر والے نیک ہو جائے، نمازی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رزق کے مسئلے کو سب سے پہلے حل کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے بندے، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو، جو بھی ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے ماتحتی میں ہوتے ہیں، سب لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگیں گے بلکہ ہم آپ کو روزی عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو گھر نمازی ہو جائے وہ گھر میں اللہ کی جانب سے روزی آتی۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہو، جس گھر کے اندر عورت بے نمازی ہو، جس گھر کے اندر مرد بے نمازی ہو، جس گھر کے اندر بچے بے نمازی ہو، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ہرگز نہیں آئیں گی۔
इसलिए मेरे भाइयों, आमाले सालिहा में सबसे पहली चीज़ जो होती है तौहीद के बाद, शहादतैन के इकरार के बाद नमाज है। नमाज को लाजिम पकड़ो, नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इंसान को मरने के बाद जब दोबारा उसे उठाया जाएगा, उठाए जाने के बाद उसे जो सवालात अल्लाह करेगा, वो सवालात में सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा, वो नमाज का सवाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला। क़यामत के दिन अल्लाह के बंदों में सबसे पहले जो सवाल अल्लाह करेगा वो सवाल नमाज के बारे में पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज को लाजिम पकड़ो, नमाज को लाजिम पकड़ो, ख़ास करके नमाज फजर को लाजिम पकड़ो, इशा को लाजिम पकड़ो। तमाम नमाजें मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं। हम में से अक्सर लोग ज़ोहर पढ़ लेते हैं, असर पढ़ लेते हैं, मगरिब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इशा में सुस्ती होती है। ख़ास करके मेरे भाइयों, फजर की नमाज में सुस्ती बहुत ज़्यादा होती। ज़ोहर में देखो नमाजी मस्जिद में होते हैं, असर में देखो नमाजी मस्जिद में होते हैं, मगरिब में भी अल्लाह माशा अल्लाह, लेकिन ये तमाम के तमाम नमाजी फजर में कहाँ जाते हैं, फजर में कहाँ जाते हैं। फजर की नमाज को लाजिम पकड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा की नमाज में और फजर की नमाज में जो बंदा सुस्ती करता है वो मुनाफिक है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इशा की नमाज और फजर की नमाज, ये दोनों नमाजें मुनाफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरां गुजरते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अगर कोई सहाबी नमाज फजर में ना होता, नमाज फजर में गैर मौजूद होता, तो सहाबा उसे एक अजीब व गरीब निगाह से देखा करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज को लाजिम पकड़ो। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए, बरकतों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाहु अन्हु है। मैं ये हदीस को बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे हुक्म दीजिए। अल्लाह के नबी ने उनको 3 बातों का हुक्म दिया और कहा, ये 3 बातों को लाजिम पकड़ो, तुम कामयाब ज़िंदगी दुनिया में बसर करोगे। वो क्या है? अन उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अम्सिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वबकी अला खतीअतिक। 3 काम अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया उक़बा इब्न आमिर को और कहा, ये 3 काम लाजिमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले आओ, तुम कामयाब ज़िंदगी बसर कर लोगे। सबसे पहला काम, अम्सिक अलैका लिसानक, तुम अपनी ज़बान पर काबू रखो, तुम अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखो, ज़बान को बेलगाम न छोड़ो, ज़बान को कंट्रोल में रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म देते हुए कहा, मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान को पकड़ा, हल्का सा अल्लाह के नबी ने ज़बान को पकड़ा और बाहर निकाला और कहा, सुनो, ये ज़बान, ये गोश्त का एक टुकड़ा तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नुम भी है, तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। सहाबा ने कहा, क्या हम हमारी ज़बान से जो बातें करते हैं ये बातों के बारे में भी अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, हमारी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकलता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला कहता है, तुम्हारी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकलता है फरिश्ते उसे नोट कर लेते हैं, फरिश्ते तुम्हारी आमाल में उसे लिख करके रखते हैं। इसलिए कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान को कंट्रोल में रखो, सच्चाई में इख्तियार करो, सच बोलने में, हक़ बोलने में, नरम बोलने में, हक़ बोलने में ज़बान को इस्तेमाल करो, गीबत में, चुगली में, बुराइयों में, नाफरमानियों में इस्तेमाल न करो। ये पहला उसूल। दूसरा बताया, वलियसअक बैतुक,
तुम कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकल कर के जाते हो, कमाने के बाद, ड्यूटी के बाद फारिग औकात तुम्हारे जो मिलते हैं, इन औकात को तुम अपने घर में गुजारो, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ घर में गुजारो तुम, तो दुनिया की मुसीबतों से बच जाओगे तुम। तीसरा उसूल प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वबकी अला खतीआतिक, तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी, नदामत को इख्तियार करते हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफ़िया मांगो। ए अल्लाह, हमने हमारी गुनाहों की वजह से हमारी ज़िंदगी को हमने गुनाहों की ज़िंदगी गुजार लिया है, हम नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजारा है, तेरी नाशुक्री में ज़िंदगी गुजारा है, तेरी नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारा है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हुए ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीनन कामयाब और कामरान ज़िंदगी बसर करते हैं। बहुत सारे उसूल हैं मेरे भाइयों, में खुलासे कलाम के तौर पर आपको बता दूँ कि आज के जुमा का मेरा खुतबा, उसका जो मौजू है कामयाब ज़िंदगी के रहनुमा उसूल हैं। उसके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तक़वा ले आए, उसके बाद सब्र लेकर आए, शुक्रगुजार ज़िंदगी बसर करे, आमाले सालिहा को इख्तियार करे, अपनी ज़बान को कंट्रोल रखे। इस तरह के बहुत सारे उसूल हैं जो शरीयत ने मुझे और आपको बताई है। इस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने खुतबा मसनूना में कुरान करीम की एक आयत को पढ़ा था। एक दुआई आयत है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद, बल्कि हर दुआ के अंदर अल्लाह के नबी ये दुआ अल्लाह से मांगा करते थे। वो दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, तू मुझे दुनिया की अच्छाइयाँ अता फरमा और आखिरत की भी अच्छाइयाँ अता फरमा। दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी दे और आखिरत में भी कामयाब ज़िंदगी दे, और तो हमें जहन्नम के आदाब से नजात दिला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हम में से हर एक को चाहिए ये दुआ को याद करे, हर नमाज के बाद हम ये दुआ पढ़ते रहे, अपने बीवी बच्चों को भी ये दुआ सीखा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में, उनके फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बरउ रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।